Jai Hind student, welcome to English class. So students, in the last lecture, we have seen about the signalman and narrator's conversation. So signalman, he was suffering from some trouble, and then he promised narrator कि if he will visit again, then he will tell everything about the trouble. So now what happened next morning, next night at 11, the narrator went to the signalman again. Okay, so this you can see in the picture. This is the narrator and this is the signalman. So he again went to the signalman to find out the problem and if he could give any solution. So he went to the signalman. So let's start. What happened, what trouble signalman tells this narrator. So as soon as we were seated, he started speaking in a tone but a little above a whisper. So this narrator, he sat down and he started speaking in a tone but a little above a whisper. Okay, वो उससे बात करने लगा but a little loud. ठीक है, it was not a whispering sound, a little loud than a whisper. Now he gave explanation to his trouble ki what is the trouble he is suffering from. So he explained, one moon night about an year ago, said the man, कि 1 year ago. So what happened, I was sitting here and when I heard a voice cry, मैं बैठा हुआ था अपने बॉक्स में and I heard a voice. And what was the voice? Hello below there. So I started up, looked from that door and saw someone standing by the red light near the tunnel. So what happened? Then I went to the door. मैं डोर के पास गया और मैंने देखा कि there was someone standing by the red light. टनल के पास कोई खड़ा हुआ है and waving with one hand. एक हाथ से वो वेव कर रहा है and with the other hand he is covering his eyes. और दूसरे हाथ से अपने eyes बंद किया हुआ है. So the voice seemed harsh with shouting and it cried, look out, look out. So जो voice जो थी वो बहुत hoarse थी, means बहुत ही दुख भरी थी and it was shouting. और वो चिल्ला रहा था कि look out, look out, देखो. So I caught up my लैम्प, turned it on red. मैंने अपना लैम्प उठाया और उसकी जो लाइट थी उसको रेड किया, मीन्स बड़ा किया थोड़ा लाइट को और उसका और एरिया जो लाइट को और बढ़ाया एंड रैन टूवर्ड्स द फिगर. और फिगर के पीछे मैं भागा, कॉलिंग व्हाट्स रॉन्ग, चिल्लाता हुआ कि क्या प्रॉब्लम है. व्हाट वॉज हैपेंड, क्या हुआ है. वेयर, कहाँ पे. आई स्टूड जस्ट आउटसाइड द ब्लैकनेस ऑफ द रॉन्ग. व्हाट हैड हैपेंड, वेयर. I just stood outside the blackness of the tunnel. I advanced so close upon it that I wondered as it's keeping the sleeves across its eye. So मैं उसके पीछे पीछे भागता रहा. मैं इतना पास आ गया कि I wondered as it keeping the sleeve across its eyes. I am right up at it and had my hand stretched out to pull the sleeves away when it was gone. और वो अपने हाथ से दोनों ही हाथ से वो क्रॉस बना के अपने जो था मुंह पे रखे हुए था. और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा वो हाथ हटाने के लिए, जैसे ही मैंने अपना हाथ स्ट्रेच किया टू पुल द स्लीव्स अवे, वैसे ही वो गायब हो गया. ही disappeared. After we had sit silently for a while, he slowly added these words. ठीक है. Then what happened? Then he was listening. The narrator was quietly listening signalman's story. फिर क्या हुआ? He added these words, touching my arm. Within 6 hours after the appearance, the memorable accident on this line happened. और तभी वो जो उसने मुझे that signalman, he टचिंग माई आर्म, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बताया कि उसी मोमेंट के जब उसने उसको देखा था दैट इमेज, उसी के 6 आवर्स बाद व्हाट हैपन, एक एक्सीडेंट हो गया इसी रेलवे ट्रैक में. एंड विद इन 10 hours the dead and wounded were brought along through the tunnel over the spot where the figure stood. और एक्सीडेंट हुआ और जो भी wounded थे, जो भी इंजर्ड थे, जो भी डेड पर्सन थे, वो सब लाए गए उसी प्लेस पे जहाँ पे वो फिगर स्टूड थी, जहाँ पे उसने वो फिगर देखा था. A disagreeable shudder
सो डिसएग्रीएबल मीन्स होता है द समथिंग विच यू कैन नॉट एग्री, एकदम से वो काँप गया, कि मीन्स ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हु दैट नरेटर, कि वट एवर सिग्नल मैन इज टेलिंग दैट इज रियल. तो a disagreeable shudder crept over me, but I did my best against it. Means he was not ready to agree कि whatever signal man has said that is true. 6 or 7 month passed. फिर 6 or 7 month passed हो गए हैं, and I had recovered from the surprise and shock when one morning, as the day was breaking, I was standing at the door, looking towards the red light, and saw the spectre again. He stood with the fixed लुक एट मी. अब आफ्टर 6-7, उस एक्सीडेंट के 6-7 मंथ्स बाद फिर से वो उस सरप्राइज, उस शॉक से उभरा ही था सिग्नल मैन, कि एक मॉर्निंग फिर से व्हेन ड्यूरिंग द डे, वो जब स्टार्ट हो रही थी मॉर्निंग, वो डोर के पास खड़ा हुआ था, एंड ही लुक टुवर्ड्स द रेड लाइट, और उसने वहाँ पे उस स्पेक्ट्रा मीन्स होता है घोस्ट को मैंने फिर से देखा. ओके, सो ही stopped with a fixed look at me. Did it cry out? Then the narrator asked, क्या वो फिर से चिल्ला रहा था? No, it was silent. सिग्नल मैन ने रिप्लाई किया, no, it was silent. Did it wave its arm? क्या वो अपनी आर्म्स को वेव कर रहा था? No, it leaned against the shaft of the light with both hands before the face like this. नहीं, he was लीनिंग अगेंस्ट द शाफ्ट. जो लाइट थी, जो टनल में लाइट जल रही थी, वो उसी पे लीन करा हुआ था, उसी पे लटका हुआ था, विद द बोथ हैंड्स बिफोर द फेस लाइक दिस. ठीक है, दोनों हाथ वो रख के बताता है, दोनों हाथ जो थे उसके फेस पे थे, क्रॉस की तरह. वंस मोर आई फॉलोड हिज एक्शन विद माई आईज. इट वॉज द एक्शन ऑफ मोर्निंग. और मैंने देखा कि वो जिस तरह का एक्शन कर रहा था, उसके मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि वो एक्शन जो था बहुत ही डिस्ट्रेसफुल था, डिप्रेसिंग था, मोर्निंग का था, मीन्स ग्रीव का था, बहुत दुख वाला, कोई जैसे दर्द में हो. सो वंस मोर आई फॉलोड हिज एक्शन विद माई आईज. It was an action of mourning. I have seen such an attitude in stone figures और जिस तरह का एक्शन था कि वो अपने फेस पे दोनों हाथ क्रॉस बना के अपनी आँख ढके हुए है. सो इस तरह का एक्शन मैंने स्टैचूज़ या टोम्स में देखा है. ठीक है, एंड दिस एक्शन रिप्रेजेंट एक्शन ऑफ मोर्निंग. ये ग्रीफ, सैडनेस का ही एक्शन है, जो कि मैंने ऑलरेडी स्टैचूज़ में देखा है. आई केम इन एंड सैट डाउन पार्टली टू कलेक्ट माई थॉट. फिर मैं वापस आया अपने बॉक्स में, और मैं ये सब थॉट्स को रिकलेक्ट कर रहा था, सोच रहा था इसी के बारे में. बिकॉज इट हैड टर्न मी फेंट. क्योंकि मुझे ये सब देख के एकदम से चक्कर सा आ रहा था. वेन आई वेंट टू द डोर अगेन, डे लाइट वॉज अबव मी एंड द घोस्ट वॉज गॉन. और जब मैं फिर से थोड़ी देर बाद डोर के पास पहुंचा, तो तब तक क्या था, दिन हो गया था, बिकॉज आई हैव सीन इन द मॉर्निंग, और वो घोस्ट जा चुका था. बट नथिंग फॉलोड, नथिंग केम ऑफ दिस. ही टच्ड मी ऑन माई आर्म. क्या कुछ हुआ इसके बाद? हु आस्क्ड? द नरेटर आस्क्ड. तो देन अगेन ही टच्ड मी ऑन द आर्म. उसने मुझे फिर से छुआ, सिग्नल मैन ने, विद हिज 4 फिंगर ट्वाइस और थ्राइस, गिविंग अ घास्टली नॉड ईच टाइम. मुझे उसने 2-3 बार हाथ से पकड़ा, मीन्स वो जैसे बहुत डरा हुआ सा था, घासली टच दिया मुझे, डरावना टच दिया. बोला, देयर दैट was day. As the train came out of the tunnel, I noticed at the carriage window on my side what looked like a confusion of hands and head was something waved. I saw it just in time to signal the driver stop. He shut off and put his brake on. I ran after it, and as I went along, heard terrible screams and cries. A beautiful young lady had died instantly in one of the compartments and was brought in here and was laid down on the floor between us. तो जब मैंने उससे पूछा कि कुछ हुआ, तो उसने मुझे बहुत ज़ोर से पकड़ा, लाइक समथिंग बैड हैज़ हैपन. उसने बताया, येस, दैट वेरी डे ट्रेन केम आउट ऑफ द टनल. ट्रेन आई टनल से, एंड आई नोटिस्ड एट द कैरिएज विंडो ऑन माई साइड. और मैंने नोटिस किया, जो विंडो होती है, जो उसकी तरफ विंडो थी ट्रेन की, वहाँ पे उसने कोई इमेज देखी, और वो कंफ्यूज्ड इमेज थी, मीन्स कंफ्यूजन ऑफ हैंड्स एंड हेड एंड वो समथिंग वेव. उसको लगा फिर से किसी ने उसको वेव किया. ठीक है, आई सॉ इट जस्ट इन टाइम टू द सिग्नल द ड्राइवर. सो स्टॉप.
तो मैंने तुरंत ड्राइवर को सिग्नल दिया स्टॉप करने के लिए, स्टॉप। ही शट ऑफ एंड पुट हिज ब्रेक, तभी ड्राइवर जो था उस ट्रेन का उसने ब्रेक्स अप्लाई किया। फिर मैं उसके पीछे भागा, आई रैन आफ्टर इट, उसी विंडो से जो इमेज दिख रही थी, एंड आई वेंट अलॉन्ग अ टेरेबल स्क्रीम एंड क्राई। जैसे ही मैं दौड़ा तो मैंने एक टेरेबल, भयानक, बहुत ज़ोर से स्क्रीम और चिल्लाना चीखना सुना। और क्या हुआ, अ ब्यूटीफुल यंग लेडी हैड डाइड, और तभी जो एक यंग लेडी जो थी एक कंपार्टमेंट में, वो मर गई और उसको लाया गया बॉक्स में, जहाँ की उसे फ्लोर पे लिटा दिया गया। Involuntarily, I pushed my chair back as I looked from the broadest at which he pointed. तो बिल्कुल मीन्स ना चाहते हुए भी मैंने, मेरी अचानक से जो चेयर थी, मतलब ये सुन के मैं डर गया। कौन? द नरेटर। ठीक है, इनवॉलेंट्री माने होता है जो एक्शन हमारी विल में ना हो। तो मैं चाह के भी मेरी चेयर जो थी एकदम से पीछे खिसक गई। एज आई लुक फ्रॉम द बोर्ड एट विच ही पॉइंटेड टू हिमसेल्फ, आई कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से टू एनी पर्पस एंड माई माउथ वॉज ड्राई। और मैं बिल्कुल ये सब सुन के, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वॉट आई शुड से, एंड माई माउथ वॉज ड्राई, मतलब आई वॉज नॉट एबल टू से एनी वर्ड्स टू द सिग्नल मैन। Now he resumed, now sir, mark this and judge how my mind is troubled. अब आप ही बताइए, आप इस whatever I have told you, just analyze it and you tell me कि मैं ट्रबल में, मेरा माइंड इस समय कितना ट्रबल में है। द स्पेक्ट्रा केम बैक अ वीक अगो, क्यों? अब स्पेक्ट्रा जो है एक वीक पहले मुझे फिर से दिखा है। 2 बार दिखा तो 2 बार कैजुअलिटी हुई। One was the train accident 1 year ago, then 6 to 7 months a beautiful lady was died. Now again a week ago I have seen, and it has been there now and again by fits and start. अब मुझे वो बार बार दिख रहा है। Again I am seeing that spectra at the light, at the danger light, and what does it seem to do? क्या दिख रहा है? लाइट पे, डेंजर लाइट है वहाँ पे दिख रहा है। Who asked? The narrator asked. And what does it seem to do? और वो क्या कर रहा है? So this is the explanation of the third part of the story कि which what was the trouble the signal man was suffering, and he shared his trouble to the narrator. Now he asked, and now he asked narrator to help him. So now what will happen next, that we will going to see in the next lecture. So thank you students.